Hello, good morning students. So today we are going to discuss chapter 1. The chapter 1 name is Input, Output and Storage Devices. So let's start this chapter with some bulletin points, what we are going to learn here in this. So first one is computer system, working cycle of a computer system, parts of a computer, input devices, processing devices, output devices and the storage devices. See, as you can see, the heading of the chapter is input, output and storage devices. So basically we are going to learn here the hardware of the computers. Okay, जो भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कौन से हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन से हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सारे डिवाइसेस के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक हार्डवेयर होता है. So let's start this. The computer system. A computer is an electronic device. It is able to do a multiple task at a time. There are many devices that can be attached to the CPU to increase the work efficiency and the usefulness of the computer. In addition to these devices, many software have been developed which increase the utility of computers in a different work areas. A computer works in the three stages. It takes input work on the input, that is called the processing, and finally give the desired output. We use this output for a further uses to or keep it for the future need. A computer is not limited to a specific area. It is available and moreover accessible in any location of the world. It is seen at the shops, banks, hotels, schools, railway stations, airports, hospitals, restaurants and the many more locations. Nowadays it has become an essential part of our life. देखिए यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में. मतलब कंप्यूटर सिस्टम हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा कनेक्टेड है ये हम देख सकते हैं. हम अगर स्कूल की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, वर्क ऑफिस की बात करें, आप हर जगह जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो है हमारी कंप्यूटर पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हम कोई भी चीज़ें, कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें एडिट करके, इनपुट करके, सेव करके रख सकते हैं फॉर आवर करंट नीड एज वेल एज फॉर फ्यूचर नीड्स ऑल्सो. तो यहाँ पे जो हम इनपुट देते हैं, कई बार हम जो भी इनपुट हम दे रहे हैं ये हमेशा से हम किस चीज़ से देते हैं, एक इनपुट डिवाइस की हेल्प से देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड जो है आप उसमें क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, आप क्लिक कर रहे हो. क्लिक करने के बाद सेम इन्फॉर्मेशन जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है. दैट मीन्स what we are doing, we are giving a input to the system. Now we see the working cycle of a computer system. अब देखिए इसमें जो है हम क्या देखेंगे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल किस तरह से हो रहा है. The working of a computer system basically depends upon the three main functions. Input, it refers to the data or instruction entered into the computer with the help of input devices. It can be any text or command given by the user. अब देखिए, आप जो भी चीज़ आप बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हो वो कैसे मिलती है, उसको इनपुट मिलता है तब वो आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होकर दिखती है, राइट. तो उसके लिए हमें क्या है, कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. और इनपुट डिवाइस किस तरह से काम करता है, ये बेसिकली जो भी हमने डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर किया है कंप्यूटर में, ये इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम एंटर करते हैं. और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कुछ भी हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, जो भी हम चीज़ें हम दे रहे हैं. देखिए टेक्स्ट का मतलब बेसिकली हम एंटर कर रहे हैं, राइट. कमांड का मतलब क्या, हमने मान लीजिए शट करने का कमांड दिया है, कोई फाइल ओपन करने का कमांड दिया है, डबल क्लिक, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, ये सारी चीज़ें आपके इनपुट के ही अंदर आएंगी. Now we see the processing. It refers the actual processing of data according to the given instruction. This all is done in the processing device of the computer system. The processing device of a computer system is CPU. अब देखिए जो भी डेटा हमने बेसिकली एंटर किया है या इनपुट दिया है उसमें क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन जो भी हमने दिया है उसको वो डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा. ये सारा चीज़ें जो है प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होता है, ठीक है. और ये जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस है कंप्यूटर का उसको हम कहते हैं CPU, विच इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब हम देखेंगे आउटपुट. It refers to the results that are produced after the processing of the data. These results can be stored or presented as a hard copy to the user with the help of output device. अब देखिए जो भी हमने बेसिकली डेटा इनपुट दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है या कमांड दिया है, वो क्या होगा, प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. एंड देन ये क्या करेगा, रिजल्ट शो करेगा हमारी स्क्रीन पे जो कि होगा आउटपुट.
अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम के यहाँ पे पार्ट्स दिखाए गए हैं इमेज में। सबसे पहले मैं जो थ्योरी है उसे रीड कर देती हूँ, उसके बाद आपको जो है हम इमेज एक्सप्लेन करेंगे। The different peripheral devices of a computer are well connected to the CPU with the help of wire and cables। देखिए जो पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी आप जब कंप्यूटर खरीदते हैं राइट, तो कंप्यूटर खरीदने का मतलब क्या होता है, उसके साथ आपको CPU है, स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, माउस हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये सारी पेरीफेरल डिवाइसेस हैं जो इनके साथ हमें क्या करनी होती है, अटैच करनी होती है CPU से बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर आपने लिया है, स्क्रीन है, CPU है, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कनेक्ट द केबल्स ऑफ द peripheral devices to the CPU first. Some of the peripheral devices have a wireless connection with the computer. The peripheral devices of the computer can be categorized as below. अब देखिए जो भी चीज़ें आपने पेरिफेरल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो समटाइम्स इट कैन बी अ वायरलेस और इट कैन बी हैव अ वायर। ठीक है, तो अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो कई सारी चीज़ें जो है आपको वायरलेस मिलेगी, जैसे वायरलेस कीबोर्ड्स हैं, माउस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वायरलेस देखने को मिल सकती है। अब हम देखिए इसमें भी क्या बताया गया है कि इसे कैटेगराइज्ड किया गया है, किस चीज़ को, पेरिफेरल डिवाइसेस को, जैसे कि प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पे जो इमेज शो की गई है, देखिए इमेज जो शो की गई है उसमें कीबोर्ड और माउस को क्या बताया गया है, एज अ इनपुट डिवाइस, मॉनिटर और प्रिंटर को बताया गया है एज अ आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच मीन्स द CPU एंड द स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है दिस इज़ अ हार्ड डिस्क। सो ये क्या है, ये बेसिकली स्टोरेज डिवाइस के लिए आपको हार्ड डिस्क शो किया है और प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए आपको यहाँ पे CPU शो किया गया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कैटेगराइज्ड। नाउ वी आर गोना सी द इनपुट डिवाइस। बेसिकली इनपुट डिवाइस के बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पे। The device that help the user to enter a data instruction into the computer as an input are called the input device. These instructions can be in the form of the typed text, commands or any other way that the computer is able to understand. Example of input device are keyboard, audio and video devices like a voice recorder, scanner, pointing device like mouse, trackball, light pen, light gun and many more things. Some of the input devices have been discussed below. अब देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो भी चीज़ें बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन या कमांड डेटा जो भी हमें एंटर करना है उसके लिए जो हमें हेल्प कर रही है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इनपुट डिवाइसेस में कई सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कीबोर्ड है, ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस है, वॉइस रिकॉर्डर है, स्कैनर है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसमें भी जो है कई टाइप से, जैसे माउस है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, लाइट गन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनमें से कुछ डिवाइसेस के बारे में जो है बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड में आपने देखा होगा यहाँ पे किस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे इमेज शो की गई है, जो सबसे ऊपर की कीज़ आपको दिख रही होंगी 12 कीज़ बेसिकली, तो वहाँ पे वो क्या होती हैं, वो फंक्शन कीज़ होती हैं राइट। उसके नीचे आपको अल्फ़ाबेट्स की कीज़ दिख रही होंगी, न्यूमेरिक कीज़ दिख रही होंगी, जिसमें आपको 1 2 3 लिखा हुआ दिख रहा है, जो अल्फ़ाबेट की हैं उसमें ABCD है, वहाँ पे आपको अल्ट, एंटर, शिफ्ट, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कीबोर्ड की इंस्ट्रक्शन, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देना है, जो इनपुट देना है, बेसिकली इस कीबोर्ड की हेल्प से हम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 प्रेस किया है तो स्क्रीन पे आपको 1 ही दिखेगा, आपने A प्रेस किया है तो स्क्रीन पे आपको A ही दिखेगा। तो दिस इज़ अ बेसिकली इनपुट डिवाइस व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो आप जो है यहाँ पे अगर थ्योरी पढ़ेंगी तो इसमें भी आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि इनपुट बेसिकली कीबोर्ड में क्या क्या कीज़ हैं और किस तरह से ये वर्क कर रही हैं। अगर अब हम माउस की बात करें तो देखिए माउस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, माउस में एक केबल लगा होता है, दिस इज़ अ वायर्ड माउस। अगर आप वायरलेस माउस देखेंगे तो उसके साथ एक छोटी चिप मिलती है जो आपको CPU में अटैच करनी होती है और आपके माउस में जो है कोई भी वायर लगा नहीं होता। तो दिस इज़ दैट माउस इज़ नोन एज अ वायरलेस माउस, बट हियर यू कैन सी देयर इज़ अ केबल, सो दिस इज़ द वायर्ड माउस। एंड ये आपको इस केबल को क्या करना होता है, CPU में कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने के बाद जो है बेसिकली आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं एज इनपुट वो लेता है। ठीक है, इसके साथ आप कुछ तरह के गेम्स भी खेल सकते हैं, पेंटिंग्स भी कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ करना है तो आपको वो भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। माउस में 2 बटन्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, एंड अकॉर्डिंगली इट गिव्स द हमें जो भी ऑप्शंस मिल रही हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देना है, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोफोन की, तो चलिए देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ माइक दैट अलाउज द यूजर टू गिव अ साउंड एज एन इनपुट टू द कंप्यूटर. इट इज़ स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म इन द कंप्यूटर फॉर वेरियस पर्पसेस. इट इज़ कनेक्टेड विद अ device called a sound card in the computer that handles the voice input for the
कंप्यूटर। अब देखिए जो माइक्रोफोन होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो एक वॉइस मशीन है जो कि हमें इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये डिजिटल फॉर्म में जो है ये कई सारे वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। इसे जो है कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करना होता है, जिससे क्या है जो भी वॉइस है वो एज ए इनपुट वो कंप्यूटर हैंडल करता है। अब देखिए हम बात करेंगे टच पैड की। टच पैड जो होता है वो आपने लैपटॉप में देखा होगा। जनरली जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें आपको टच पैड देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपके लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप में आपको क्या होता है, माउस की जगह एक टच पैड दिया जाता है, जिसमें आप क्या है जो कि एक माउस की तरह ही काम किया करता है, जिसको आप टच करके कर्सर को इधर उधर हिला सकते हैं, किसी ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बेसिकली काम करता है। अब हम बात करेंगे टच स्क्रीन की। अब देखिए टच स्क्रीन आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो आपने देखा है कि आप स्क्रीन पे टच करते हैं और वो सारे इंस्ट्रक्शंस लेता है। तो दैट मीन्स जो भी हम इनपुट दे रहे हैं तो ये भी जो है टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे लाइट पेन की। तो देखिए लाइट पेन क्या होता है, ये एक इसमें सेंसर लगा होता है जो कि काफ़ी सेंसिटिव नेचर का होता है, और ये जो कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले कर रही है उसमें अगर आपको कोई भी इनपुट जो है प्रोवाइड करने, जैसे किसी स्क्रीन को हटाना है, किसी स्क्रीन को लाना है, उसमें कुछ लिखना है, किसी चीज़ को पॉइंट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं हम लाइट पेन की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कैनर की। तो देखिए स्कैनर क्या करता है, जो भी हार्ड कॉपी इमेज होती है उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, जिसे हम एज अ डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपको कुछ पेपर्स दिए गए हैं, आपको उस पेपर को एज अ सॉफ्ट कॉपी अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप क्या करेंगे, जो ये स्कैनिंग मशीन होती है, जो स्कैनर होता है, बेसिकली आप उस मशीन में उस हार्ड कॉपी को डालेंगे, उसको स्कैन करेंगे, स्कैन का कमांड देना होगा, देन इट विल स्टार्ट स्कैनिंग इट एंड देन यू कैन स्टोर दैट डेटा इन योर पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर। इसमें हम कुछ तरह के एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक डिजिटाइज्ड कॉपी में उस चीज़ को सेव कर रहा है। अब देखिए स्कैनर के भी जो है कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्लैट बेड स्कैनर है, शीट फेड स्कैनर है और हैंड हेल्ड स्कैनर है। अब हम देखेंगे डिजिटल कैमरा। अब देखिए डिजिटल कैमरा आपने बेसिकली बहुत ही सारी जगहों पे जो है बेसिकली देखा होगा, जिसमें क्या होता है बेसिकली हम पिक्चर्स जो हैं लेते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, उसमें एक चिप लगी होती है जिसमें जो कि उसका स्टोरेज डेटा डिवाइस होता है, जिसके अंदर सारा डेटा जो है बेसिकली क्या होता है स्टोर होता है। इसमें सारे ऑपरेशंस जो हैं आप कर सकते हैं, जैसे एडिटिंग है, प्रिंटिंग है, स्टोरिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है विद द हेल्प ऑफ हम जो है कंप्यूटर से एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये सारे कैमरा जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड हो रहे हैं, जो कि डिजिटल कैमरा है। अब हम बात करेंगे वेब कैमरास की। तो जो वेब कैमरा होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कैप्चर करता है फ़ोटोग्राफ या फिर वीडियो को जो भी लाइव चल रही है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई पिक्चर स्टोर करना है, आपको पिक्चर क्लिक करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है इसकी हेल्प से होती है। एंड प्रोफेशनली आपने देखा होगा कई सारी मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें आपको ऑनलाइन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो बेसिकली क्या होता है, इसी वेब कैमरा की हेल्प से आप उस स्क्रीन पे शो करते हैं, आप दिखते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो देखिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस में जो है वो है क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द CPU। अब CPU में कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेजर कंपोनेंट्स होती हैं। अब जो CPU है कि कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा दिया जाए, कहीं ज़्यादा सिंपल डेटा दिया जाए, ये सारी चीज़ों को बेसिकली क्या करता है, इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता है। तो इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में मेनली हमें पढ़ना है, जैसे कि मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या है, दिस यूनिट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेरली और द परमानेंटली इन इट्स मेमोरी। अब जो मेमोरी यूनिट होता है ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है टेम्परेरी भी और परमानेंटली भी। अब हम देखेंगे ALU विच इज़ अ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन फॉर द कंप्यूटर। देखिए अरिथमेटिकल और लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई मैथ सम सॉल्व किया है, किसी तरह का लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा हैंडल की जाती हैं, ये ALU के द्वारा हैंडल की जाती है, विच मीन्स इट परफॉर्म्स बाय द ALU यूनिट।
नाउ वी सी द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? टू कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द सिस्टम परफॉर्म ऑल द इंस्ट्रक्शन, इट डज नॉट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन बट एनी डायरेक्ट्स द पार्ट टू द एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन और द प्रोग्राम। बेसिकली ये कंट्रोल यूनिट जो है पूरी तरह से सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अपने आप परफॉर्म हो रही है या चलते जा रही है तो कोई भी चीज़ खुद से जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो ये काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। सारी चीज़ों को हैंडल करना, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इन सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बेसिकली जो है वो हैंडल करता है। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। देखिए आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें, बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस क्या है? द डिवाइसेस दैट हेल्प द यूजर टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर एज एन आउटपुट आर कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। दिस रिजल्ट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, or which is used for the future reference, and moreover these are in human readable format। अब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के इसमें ही हमें देती है, शो करती है। अब कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस जो कि आउटपुट डिवाइसेस के एज अ जानी जाती हैं वो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, ETC। अब हम जो है इनमें से कुछ डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मॉनिटर। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो आपने मॉनिटर पर देखा होगा आपकी टीवी LED स्क्रीन्स जो हैं या फिर जो CRT मॉनिटर्स हैं, तो ये बेसिकली इनके बारे में हमें जानना है। ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो CRT मॉनिटर क्या है ये हम देखेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ द CRT इज़ अ कैथोड रे ट्यूब। दिस मॉनिटर कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन गन्स एंड द फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले दी इमेजेस। सो ये जो है एक तरह का बेसिकली एक लिक्विड होता है जिसकी हेल्प से क्या है जो पिक्सल्स हमें जो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं दैट वी नोन एज द CRT मॉनिटर्स। अब LED मॉनिटर्स क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ द LED इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक स्क्रीन जो है डिस्प्ले करते हुए टेक्नोलॉजी है जो कि कंटेन करती है पैनल ऑफ द LEDs विच प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अब हम देखेंगे LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर बेसिकली क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ द LCD इज़ अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट इज़ अ कंप्यूटर डिस्प्ले दैट यूजेज अ LCD टेक्नोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लियर इमेज एंड इज़ मोस्टली यूज्ड इन दी लैपटॉप्स। आपने लैपटॉप की जो स्क्रीन है आपने देखी होगी वो होती है LCD मॉनिटर्स। स्पीकर्स की अब हम बात करेंगे तो स्पीकर्स क्या है? बेसिकली आपने देखा, आपने कोई सॉन्ग प्ले किया है, कोई चीज़ें की हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, राइट? तो दैट इज़ अ आउटपुट डिवाइस। एंड ये जो है कई बार विथ वायर भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ये जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कंप्यूटर में, ये सारी चीज़ें हमें सुनने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंटर की। देखिए प्रिंटर जो है इसमें भी कई टाइप होते हैं और प्रिंटर जो है एज एन आउटपुट डिवाइस ही देखा जाता है। अब इसमें हमें करना क्या होता है? बेसिकली देखिए जो भी मैं इसे पहले रीड कर देती हूँ देन यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। A printer is an output device that accepts the text or graphic from the computer and transfer the same onto a paper called as a hard copy of the result obtained. This is a more beneficial as if there is a soft copy of the output stored in the computer, the user can take a multiple number of printouts which can be used for the future needs. अब यहाँ से बेसिकली हम किस तरह से प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए किस तरह काम आ सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब बेसिकली देखिए प्रिंटर के भी कई टाइप होते हैं। अब जिसमें जो कि यहाँ पे बताया है जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये किस तरह का होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेज अ पिन्स टू स्ट्राइक ऑन इन इंक रिबन to print a text on a paper. It is not used much nowadays as the output is of low quality and it is cheap but very noisy. अब देखिए ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है बेसिकली आपने अगर टाइपराइटर देखा है तो टाइपराइटर में आपने देखा होगा जैसे कि हम भी कोई भी की प्रेस की तो एक क्या होता है वो की जाके पेपर पे ब्लैक रिबन की हेल्प से वो चीज़ उस वहाँ पे प्रिंट करती है। तो ये कुछ इस तरह से ये भी प्रिंट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा नॉइसी होता है। इसमें जो प्रिंटिंग की जाती है ये चीप है बट बहुत ज़्यादा नॉइसी और अनक्लियर होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेयर यूज़ होता है। अब हम देखेंगे इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर जो है देखिए दिस टाइप ऑफ प्रिंटर जनरेट्स एन आउटपुट बाय स्प्रेइंग इंक ऑन अ पेपर और एनी अदर मटीरियल। इट प्रोड्यूसेस बोथ कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स as an output. These are commonly used printer ranging from the less to expensive models as well.
अब देखिए ये जो है बेसिकली किस तरह का प्रिंटर होता है। ये जो है एक ऐसा प्रिंटर है जो कि आउटपुट में स्प्रे इंक जो है पेपर पे जनरेट करता है किसी भी मटेरियल पे, तो आपको वैसा कलर्ड या फिर हम कह सकते हैं ब्लैक वाइट या फिर वाइट प्रिंट भी आपको एज आउटपुट मिल सकता है। ये जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है और ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है बाकी प्रिंटर्स की कंपैरिजन में। अब हम देखेंगे लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है ये देखिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है टू जनरेट अ प्रिंट आउट इज़ द फोकस्ड बीम और लाइट दैट ट्रांसफर द टेक्स्ट और इमेजेस ऑन अ पेपर एंड देन इंक इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑन अ पेपर इज़ द फॉर्म ऑफ द ड्राई पाउडर। दीज आर द मोर एक्सपेंसिव एंड कॉमनली यूज दीज डेज। अब जो ये लेज़र प्रिंटर होते हैं बेसिकली ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं अगर हम बात करें इंकजेट प्रिंटर की उससे, और अभी जो है ये कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होते हुए आपको दिखाई देगा। ये जो इंक यूज़ करता है पेपर पे प्रिंट करने के लिए एक तरह के ड्राई पाउडर के फॉर्म में होती है। अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए स्टोरेज डिवाइस जो है उसमें मेमोरी है, मेमोरी के बारे में हम देखेंगे यहाँ आगे। वी नो दैट द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. It controls the functioning of the computer. It remembers all the things stored in it, and when we give a command to it, fetches the information from its memory. A computer is a great way to store a large amount of data. We can retrieve the data anytime. A computer can store the program in its memory. When a certain program starts on the computer, first of all, it is loaded in the computer memory. अब देखिए ये जो है कि मतलब हमने मेमोरी मतलब क्या, देखिए मेमोरी मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है हमने जो डेटा बनाया है एडिट किया है उसे हम सेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है वो स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोरेज में जा रहा है। तो ये जो मेमोरी है कई तरह की होती है, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है रोम, जिसमें बेसिकली क्या है डेटा परमानेंटली सेव हो गया है। तो इस तरह की जो है ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं किस तरह से काम कर रही है, क्या काम कर रही है। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है 1 बाइट मतलब क्या है 8 बिट्स, 1025 बाइट मतलब क्या है 1 किलोबाइट विच मीन्स 1 KB। देन 1024 KB क्या होता है 1 MB। देन 1024 MB क्या होता है 1 GB। देन 1024 GB क्या होगा 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट क्या होगा 1 पेटाबाइट। अकॉर्डिंगली क्या है ये इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पे बिट और बाइट में बेसिकली क्या है हमें बताया गया है कि कितना ज़्यादा डेटा है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला किसी चीज़ की स्टोरिंग कैपेसिटी 1 KB, दैट मीन्स इट्स वेरी लेस। अगर मैंने बोला 1 MB है तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। 1 GB है दैट मीन्स 1 GB स्टोरेज डेटा है, तो 1 GB तक का डेटा आप क्या कर सकते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अकॉर्डिंगली। These are the terms referred in the computer world for storing a data in a computer system. The computer understands only one language called a binary language. It consists of only 2 numbers, that is 0 and 1, where 0 represents the off state and 1 represents the on state. Every data transferred to and from the computer is in computer readable language, which is a binary language. तो 0 1 0 0 इस तरह का जो भी डेटा होता है ये बाइनरी नंबर्स होते हैं और यही लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझता है। द डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन अ बाइट। फॉलोइंग इज अ टेबल शोइंग अ डिफरेंट वैल्यूज इन विच अ डेटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। अब देखिए मेमोरी के भी कई टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे बताया है जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी है उसमें भी प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है रैम है, रोम है। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सारी क्या है सेकेंडरी मेमोरी है। तो चलिए हम देखेंगे अब प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. This is the inbuilt memory that stores the data and instruction while working. A computer cannot run without a primary memory. Primary memory के बिना जो है कंप्यूटर रन नहीं होगा. It is referred as the working memory of the computer and is a very costly. अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है जो कि प्राइमरी मेमोरी है जिसमें है रैम एंड रोम. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट अलाउज द डेटा टू बी एग्जीक्यूटेड एंड स्टोर्ड फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट erases द डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ और अ पावर गोज ऑफ. इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी डेटा हम फिल कर रहे हैं वो थोड़ी ही देर के लिए होता है. दैट मीन्स इट इज़ अ टेम्परेरी और ये डेटा इरेज हो सकता है अगर हम कंप्यूटर को हमने स्विच ऑफ कर दिया या सडनली लाइट
लाइट ऑफ हो गई। सो दिस इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है बेसिकली, ये इसमें जो लिखा है हम ये बहुत जल्दी क्या है ये मिट सकता है, ये सेव नहीं होता है। अब हम बात करेंगे रोम की। तो रोम क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स द डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड विच मीन्स द डेटा इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, और इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर विच कैन बी रीड ओनली बट नेवर एडिटेड। अब रोम में जो डेटा सेव होता है ये जो है ये नॉन वोलेटाइल डेटा होता है। बेसिकली ये मिटेगा नहीं, अगर कंप्यूटर सडनली ऑफ हो जाए या हम बंद कर दें तो ये डेटा जो है उसमें ही रहेगा। ये इसका जो है ये इस तरह का होता है कि ये हम इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, हमें इस डेटा को क्या कर सकते हैं, हम एडिट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे आगे। जैसे कि देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दिस कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम and can be used whenever required as the primary memory has a less storage capacity। क्योंकि रैम और रोम की जो कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये काफ़ी लिमिटेड ही होती है, तो हम उसमें एक्सटर्नल मेमोरीज लगाते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क है और बाकी ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्स्ट्रा डेटा रखती हैं, तो ये इट इज़ कॉस्टली ऑल्सो। सो and then moreover the data does not get lost when the computer is powered off, and it is also known as the auxiliary storage. The data is transferred from the secondary storage to a primary storage so that the computer can process it and perform the said action by the users। हम जो भी एक्शन देंगे वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा। सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब कुछ जो डिवाइसेस हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। अब देखिए ये जो डिवाइस है ये डेटा को स्टोर करता है और इसमें से हम डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, एंड इट इज़ अ मेजर स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू के अंदर लगा होता है। और ये इस डेज अगर दीज डेज में हम बात करें तो इट इज़ अ वेरी पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो है ये अवेलेबल होते हैं, एंड इट इज़ ईजिली डेटा जो है ईजिली काफ़ी ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ हार्ड ड्राइव। अब हम देखेंगे फ्लॉपी डिस्क। इट इज़ अ स्टोरेज मीडियम इंक्लूडिंग अ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क inside a plastic carrier which helps to read and write data to and from the computer system. A computer must have the floppy disk drive which is a FDD is order to read and write data from a floppy disk। अब देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसका स्टोरेज मीडियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हिसाब से ही होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं है होता है, कम ही होता है। इसमें जो है ये मैग्नेटिक डिस्क होता है, इसके अंदर एक प्लास्टिक कैरियर होता है जो कि हेल्प करता है रीड और राइट करने में डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में। फ्लॉपी डिस्क की जो ड्राइव होती है ये रीड एंड राइट डेटा को के फॉर्म में ही होती है, इसलिए हम इसे बेसिकली फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। अब हम देखेंगे सीडी। अब देखिए यह सीडी क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ द सीडी इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड इट इज़ अ डिजिटल स्टोरेज मीडियम यूज टू स्टोर अ डेटा अप टू 700 MB। यानी एक डिस्क जो है वो कितने GB डेटा स्टोर कर सकती है, MB स्टोर कर सकती है, इट इज़ अ 700 ओनली। ये काफ़ी थिन और शाइनी होती है। दिस कैन स्टोर अ टेक्स्ट, ये बेसिकली कोई भी तरह का टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो जो भी है ये इसमें बेसिकली हम सेव कर सकते हैं। ये बोथ फॉर्म में होती है, रीडेबल एंड रीडेटेबल फॉर्मेट में होती है। CD कैन बी कैरिड केयरफुली टू एनी प्लेस फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। CD जब हम ट्रांसफ़र करें तो काफ़ी केयरफुली हैंडल करना होता है क्योंकि ये टूट सकती है। अब हम बात करेंगे DVD की। देखिए अब द फुल फॉर्म ऑफ द DVD इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और द डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क सेम एज द CD बट हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब उसके कंपैरिजन में इसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की क्या है, ज़्यादा है। अ स्टैंडर्ड DVD कैन स्टोर अ 4.7 GB ऑफ डेटा। यानी एक अच्छा स्टैंडर्ड DVD जो है वो कितना डेटा हैंडल कर सकता है, स्टोर कर सकता है 4.7 GB विच इज़ अ वेरी more than the CD। DVD can be single or double-sided and can have 2 layers on each side। A double-sided or 2-layer DVD will hold up to the 70 GB of data। अब देखिए वो सिंगल साइडेड भी हो सकता है और डबल साइडेड भी हो सकता है। डबल साइडेड वाला अगर DVD है तो कितना डेटा हैंडल होल्ड कर सकता है, अराउंड 17 GB। अब हम बात करेंगे पेन ड्राइव की।
अब पेन ड्राइव में देखिए, अ पेन ड्राइव और USB फ्लैश ड्राइव और अ थंब ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट हैज़ अ मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4 GB to store any type of data including text, pictures, audios and videos. Nowadays mostly all of our work is done through the storage medium, as it is handy, lightweight and the more convenient for every person to transfer the data from one place to the another. It is now available with a storage capacity of a 512 GB, which is a huge number to store a data in it. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ही जो बताया गया है, उसमें पेन ड्राइव बताया गया है। तो पेन ड्राइव जो है देखिए, इसका मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी 4 GB का होता है। ये 2 GB 1 GB में भी अवेलेबल है, विच इज़ इन अ वेरी चीप रेट। अगर आप और भी ज़्यादा हाई स्टोरेज में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा स्टोरेज वाला भी पेन ड्राइव मिल सकता है, विच विल बी अ वेरी कॉस्टली। सो इस तरह से इसमें जो है आप टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, एनीथिंग यू कैन स्टोर एंड सेव इट। तो ये इस तरह से है कि, और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल होता है, तो ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके ले जाने के लिए या कैरी करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज़ हो रहा है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। एक ब्रीफ लाइन अगर इस चैप्टर के लिए हम करें तो ये बेसिकली देखिए, चैप्टर की हेडिंग जो थी वो क्या थी, इनपुट और आउटपुट या स्टोरेज डिवाइस। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में ही हमें इस चैप्टर में जानना था कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, किस तरह से डेटा सेव हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, हम किससे रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।